کرے. اپنے آج کے جشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاسم امان کو. محمد وعلی بیت محمد سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنین کرام، عید غدیر کا جشن، عید مبارکہ کا جشن جو ہے وہ نعروں سے سجتا ہے، مولائیوں کی محفل ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا. پانچ نعرے، پانچ تری سالک نعرہ حیدری. محمد وعلی بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. آج کے جشن کے پہلے ثناخواں دعوت دیتا ہوں برادر علی حیدر کو. محمد وعلی بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد. ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد. جام کو سر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا. جام کو سر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا.
اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد حاجیوں کو غازیوں کو خم صاحب ولا حاجیوں کو غازیوں کو خم صاحب ولا خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد جنگ تو ہوتی مخالف سے سر میدان مگر جنگ تو ہوتی مخالف سے سر میدان مگر ایسی نوبت ہی نہ آئی یا علی کہنے کے بعد ایسی نوبت ہی نہ آئی یا علی کہنے میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد اے مسلمان آ گلے مل تو بھی مومن ہو گیا اے مسلمان آ گلے مل تو بھی مومن ہو گیا کیسا جھگڑا کیا لڑائی یا علی کہنے کے بعد کیسا جھگڑا کیا لڑائی یا علی کہنے کے بعد ہاتھ پھیلایا نہیں ہے ہم ملنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہے ہم ملنگوں نے کبھی اپنی قسمت خود بنائی یا علی کہنے کے بعد قسمت خود بنائی یا علی کہنے کے بعد موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد یا علی کہنے کے بعد یا علی
کہنے کے بعد پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت. جزاک اللہ. ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا. جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا. اور میں درخواست کروں گا محبوب حسین نقوی سے تشریف لائیں اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ربائی پھر چند اشعار شان امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے، ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو، ہمیشہ ہے دشمن حیدر سے دور دور رہو، عجب نہیں کہ وہ کوئی عذاب لے جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا، جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا، مگر علی خود اپنا جواب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے. درود بھیجیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا رسول کی پوری ہوئی غدیر کے دن،
ملا زمانے کو مولا سخی غدیر کے دن نظر نظر میں ہے خم غدیر کا منظر زباں زباں پہ ہے مولا غدیر کے دل علی نے دیکھا جو لہجہ نیا ہے آیت کا پڑھی علی نے بھی نہ دے علی غدیر کے دن سجا جو دیکھا صحابہ نے ممبر پالان دکھائی دے حیران سبھی غدیر کے دن میں اونچا نہیں پڑھ سکتا میری بخار آواز بالکل ٹائم دلا دیں منافقین کے چہرے اتر گئے ایسے منافقین کے چہرے اتر گئے ایسے کہ جیسے عرش سے بجلی گری غدیر جیسے عرش سے بجلی گری غدیر کے دن تمام عمر تبسم نہ ایسا فرمایا لب رسول پہ جو تھی ہنسی غدیر کے لب رسول پہ جو تھی ہنسی غدیر کے دن علی علی کے سر پہ ولایت کا تاج ایسا سجا سمجھ میں آئی ابو طالبی غدیر کے دن علی کو ہاتھوں پہ اپنے اٹھا کے بولے نبی علی کو ہاتھوں پہ اپنے اٹھا کے بولے نبی بتا رہا ہوں میں شان علی غدیر کے دن رسول کی پوری ہوئی غدیر کے دن ملا زمانے کو مولا سخی غدیر کے دن درود جزاک اللہ. اور میں درخواست کروں گا برادر عمران قاسم سے کہ تشریف لائیں اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نعرہ تکبیر Allahu Akbar. نعرہ تکبیر Allahu Akbar. نعرہ رسالت Ya Rasulullah. نعرہ رسالت Ya Rasulullah. نعرہ حیدری Ya Ali. Ya Ali. محمد و آل محمد صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات اللہ محمد و آل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. If there was one thing I learned, from my father's ways, was not the way he wrestled with life till he aged, or the word why was his favorite phrase, or the way I'd always hurt him, yet he'd still humble his gaze. What I learnt instead was that I was dreaming all wrong, and my dreams were no more than a disillusioned haze, carried away by imagination, beauty, and the mystery of fiction. When life is but a stove cooking through my afflictions, I learned that dreams were made of the attachments we knitted between us here, knitted into garments that our subconscious wears. Dreaming is an art, and it's not just confined to sleep. As soon as you tilt your head and close your eyes, the world can become a beautiful disguise. But as soon as you wake up, it strikes right at you, and that's when you look to the sunrise for the brighter answers to your nights. So what about dreams did my father teach me? He said that I shouldn't give pieces of me away so easily, so that when I do fall, I fall softer than my neighbors so tenderly. But not just that, I should also take a leap. He told me when I love, I should always love deep and recognize a loyal heart in awe of his character, well aware of the treasure he holds between the wooden chest of his ribs and the eyes of mud and water. For years I held captive this tender soul so that I may recognize lifelong goals, but all I saw was an ocean without fishes, futile dreams and impossible wishes, because like I said, I was dreaming all wrong, and freed the raven but caged the dove, when the world was but a sphere of love, with Muhammad being the north, Ali being the south, and my heart floating across their hemispheres. Subhanallah. Dreams are the breeze that blows across, polished by the night sky of Fatima, adding to the gloss. My father was the alchemist of my dreams. He guided me till I poured my molten heart into the glass vase of his eyes, and told me, if you want to fly, remember there are 7 skies. So together we began to mold my waxed heart into a candle, ignited by the beauty of Ali in 7 stages. The first thing that he taught me was, imagine all the countless grains could recall a virtue from his reign, if only they could feel, hear and see, to encapsulate a tale of our master Ali. It would recall each prostration the soil felt, each time it caressed his knees as he knelt. It would remember how the walls of the Kaaba became unstable. It would also speak of the lullabies of the angels and how the earth became his moving cradle. What I learned next was that if the wind could blow us a speech, it would talk of the door that they couldn't reach, not one great door, but 7, from Khaybar to the gates of heaven, and the 5 remaining doors all drawn apart, the gates of knowledge to the door of your heart. 3 remain. So what are the other 3? The Kaaba sliced open, was it not? And the other 2 are you and me. I then grew to understand that if time could save us a moment of Ali to save and to cherish, which would it pick and which would it perish? It would take all without an ounce of temptation, just like any other selfish creation. He yearns for him like the deepest infection of lust, and tells us if only clocks were simply made of dust, it would blow them all away to be caught in his moment, just like it's yesterday's. I also learned that if the swords and spears could bleed a tale, they'd bleed and clot for that piercing nail. If prostration was ordained upon the swords and spears, they'd prostrate and kneel in forgiveness before his tears. They'd recall the moments they erased, each fragment of his heart they misplaced, leaving cheeks once kissed and caressed by dust, and eyelid quarries running dry until they rust.
If the ink could speak in tongue from the pages, it would unveil all the scriptures of the ages. It would tell us Jesus was born a Jew and sought to be one nation salvation, unlike Muhammad, who was born as a mercy to all the nations. While Ali was born into the Kaaba till he split it apart, because in reality he was born into a room in every lover's heart. From the nations, what greater nation than the nation of Ali, the nation of the heart. So that's why if bravery was a diamond, Ali would be that diamond crown, adorned by 313 lions, with Hamza being the gold molten over bravery that knows no class, till the crown itself is engraved in name by the hands of Abbas. Finally, he taught me that when they ask me of Ali and what and why you sing, I say that I have a dream, that I awaken to the love of Ali. And that dream, and only that dream, would fly my gentle wings, a love more precious than the treasures of all the kings. And like that I ignited. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. جزاکاللہ. اور میں خاص کروں گا نمِ ذاکر رضا ہلانی سے کہ تشریف لائیں. محمد وعلی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلی بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا. نعرہ حیدری. نبی نے سب کو رکایا، غدیر کم میں بٹھایا، نبی نے سب کو رکایا، غدیر کم میں بٹھایا، کہ جس کا میں ہوں مولا، علی ہے اس کا مولا، غدیر کم کا دلہا، ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا، خدا نے مرضی دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شرف کا عرش مولا، ابو طالب کا بیٹا. جو ان سے بغض رکھے گا، بڑی مشکل میں پڑے گا. جو ان سے بغض رکھے گا، بڑی مشکل سے مرے گا. یہاں بھی ہاتھ ملے گا، وہاں بھی ہاتھ ملے گا. ہے بخشش کا دروازہ، ابو طالب کا بیٹا. اسے کہتے ہو کافر، پیغمبر کا جو چچا ہے. اسے کہتے ہو کافر، پیغمبر کا جو چچا ہے. اے فرضی باپ کے بیٹو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹا، ابو طالب
खारे खाने खाबा अबू तालिब का बेटा मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत निकल कर सामने आया वो निकला है में हक से बनी हाशिम का जियाला वो निकला है में हक से बनी हाशिम का जियाला बताती है ये जलालत बिता दो कितना ही पहरा उतारे जाएंगे दरिया अबू तालिब का बेटा जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत तो फिर फैयाज न जाने वो होगी कैसी कयामत अगर कुल कर हंस देता अबू तालिब का बेटा गदीरे कुन का दुल्हा अबू तालिब का बेटा फजीलत का मीनारा अबू तालिब का बेटा अबू तालिब का बेटा अबू तालिब का बेटा सलवा اور ممنون اکرام آج کی محفل کی آخری سنا کر تشریف درخواست کروں گا برادر محمد عباس کریم سے کہ تشریف لائیں اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ جلانا بہت ضروری ہے دیر شمع جلانا بہت ضروری ہے غدیر شمع جلانا بہت ضروری ہے غدیر کیا ہے بتانا جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے بس اب امام کا نام بہت ضروری ہے سب امام کا نام بہت ضروری ہے ایک سلوات پر دیجئے محمد والا لگاتے ہیں دری نعرے ہیں چہرے مسکراتے ہیں لگاتے ہیں دری نعرے ہیں
چہرے مسکراتے ہیں. لگاتے ہیں دری نعرے ہیں چہرے مسکراتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. علی کے چاہنے والے مناتے ہیں. ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا. نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا. سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا. غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. سب لوگ پڑھے. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے ایسے نہیں مناتے. سب کے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے. زمانہ دار پر دیکھیں ذرا میسم کی دارائی. بنایا دار کو ممبر ملی معراج گویائی. علی کا قول سچا ہو گیا یہی خوشی پائی. زباں جب کاٹی جاتی ہے زباں جب کاٹی جاتی ہے تو میسم مسکراتے ہیں. کاٹی جاتی ہے تو میسم مسکراتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ. طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ. دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا. خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ. مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ. علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ. علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ. شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. لگاتے ہیں دری نعرے ہیں چہرے مسکراتے ہیں. جو لوگ قریب تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو بعد میں آنے والے لوگوں کو موقع مل جائے گا. جو بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جائیں. محمد صلی اللہ اور درخواست کروں گا حضرت الاسلام مولانا محبوب حسین الوی سے کہ ورانہ پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ.
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد كان الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروگرام جشن غدیر و جشن مبارک کے حوالے سے ہر اس فکر کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس فرد کو مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ جس کو مشکل ترین حالات میں بھی سکون مہیا ہوتا ہے تو ذکر علی اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے کہ اس نے ولایت آل محمد جیسی نعمت سے ہم گناہگاروں کو سرفراز فرمایا. اب ہم جب غدیر کے حوالے سے اعمال غدیر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عمل یہ ہے کہ آپ غدیر کے دن اگر دوسرے ساتھی کو ملتے ہیں تو اس کو مبارکباد اس انداز میں دیا کریں کہ جعلنا اللہ من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ ہم سب کو ولایت علی کے ساتھ تمسک رکھنے والوں سے بنائے. یہ ہے شرعی طریقے پہ غدیر کے دن جو مبارک کا طریقہ، یعنی غدیر کے دن سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ہم رب سے مانگیں کہ جس در کے ہم سوالی ہیں اس در سے ہمارا تمسک رہے. لہذا یہ غدیر کتنی مبارک اور کس کو مبارک سوچ یہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر جلسہ کامیاب ہو تو جلسے کی کامیابی کی مبارک دی جاتی ہے بانی مجلس کو. آپ حضرات نے ابھی آئی کیپ والوں نے یہ پروگرام کیا ہے تو ہم اس وقت بھی مبارک دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی یاد جس انداز میں بھی ہو، ان کی یاد منانے والوں میں ہم کہاں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تشبیہ اور ایک شکل بناتے ہیں، ورنہ ان کی یاد منانے والے تو وہ گزرے ہیں جو زیر تلوار بھی ان کو یاد کر رہے تھے. سردار زیر تلوار میں جب نام لیتا ہوں تو میرے ذہن میں حجر ابن عدی آتے ہیں، وہ جو زیر تلوار بھی ذکر علی انجام دے رہے تھے. اور میں کبھی کبھی تصور کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو پورے سکون کے ساتھ، جو نہ کسی دولت سے، نہ کسی مال سے، نہ کسی اولاد سے، نہ کسی حکومت سے ملتا ہے، بس وہ اگر سکون ملتا ہے تو وہ ذکر علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے. اور اس کا اندازہ مجھے اس دنیا پرست کو ہو سکتا ہے، اس کا اگر اندازہ ہوگا تو حجر ابن عدی کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے پہلے بھیج رہا تھا، اور جب دوسروں نے کہا حجر اتنا سخت دل ہے، کہا سخت دل نہیں ہے، محبت میں یہ بھرا ہوا دل ہے. حجر کے بیٹے کے سامنے
सामने अगर बाप ज़िबा हो जाए, कहीं मोहब्बत में फर्क ना आ जाए, लेकिन हुज्र का दिल इतना मोहब्बत अली में घुल चुका है कि अगर एक बेटा नहीं 1000 बेटा ज़िबा हो जाए, मोहब्बत में इजाफा होगा, कमी नहीं। ज़ेरे तलवार में जब भी कहता हूं तो ज़ेरे तलवार सुकून आता है तो हुज्र इब्न अदी को सरेदार सुकून मिलता है तो मैं समेत अम्मार को, सफरों के धक्के खाने में अगर सुकून मिलता है अली अली का तो अबू ज़र पहले गफ्फार को, और जिंदानों में अगर किसी को सुकून मिलता है अली अली कह के तो वो है जनाब मुख्तार को। ये है हमारे, और मैं कहता हूँ बड़े से बड़े जालिम और हज्जाज जैसे कि आंखों में आंखें डाल के अगर अली अली करने में लुत्फ आता है तो ये जनाब कंबर को, और अगर इबादतों में भी अली के जरिए से दुआएं सीख के इबादतों में भी अली के जरिए से सुकून मिलता है तो उसको हम जनाब कुमैर कहते हैं। ये हर किसी का अपना, और इस दौर में अगर मैं कहूँ तो कभी नूरुल्लाह शुस्तरी के सिलसिले में 4 जिल्दों में इहकाकुल हक लिखता है तो उसको लिखते लिखते अगर सुकून आता है तो वो जनाब शहीद सालिस बनते हैं। अगर उसी लिखे हुए को फैलाने की सूरत में कोई 29 जिल्दें इहकाकुल हक की बना लेता है तो उसको हम शहाबुद्दीन मराशी कहते हैं। अपनी सारी जिंदगी फिदा करके और कुर्बान करके अगर 32 जिल्दों में अबकात लिखता है तो उसको हम मीर हामिद हुसैन मूसवी कहते हैं। अगर दुनिया वालों को मोहब्बत आले मोहम्मद खुतूत की सूरत में बतलाता है तो उसको हम अल मुराजात की सूरत में अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन मूसवी कहते हैं। और अगर कोई उर्दू में बलागुल मुबीन लिखता है तो हम उसको मिर्जा सुल्तान कहते हैं। और अगर 2 जिल्दों में सीरत अमीरुल मोमिनीन में उर्दू के अदब का एकदम दरिया बहा देता है तो हम उसको मुफ्ती जाफर हुसैन कहते हैं। और क्या कहूँ या अली, मैंने एक कसीदा देखा है, अल्लामा नाम रह गया, बेइंसाफी होगी अगर वो नाम न लो। जिंदगी के 40 बहारें फकत एक हदीस की तशरीह में, जिंदगी की 40 बहारें फकत एक हदीस की तशरीह में। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था मजलिस, मैंने कहा अभी 40 साल अल्लामा अमीनी ने 11 जिल्दों में गदीर लिखी। उनके बेटे का इंटरव्यू पिछले दिनों में था होजा.com पे। वो कहते बाप के 40 साल की जिंदगी ऐसे गुजरी कि उनका हम गम, खाना पीना, आराम सोना सब कुछ किताब थी। और वो फरमाते 1 लाख कम अज कम किताब अल्लामा मोहसिन अमीनी ने पढ़ी और 10,000 किताबों के हवाले दिए जिसमें जनाब अमीर का तज़किरा है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद पढ़ लीजिए मोहम्मद। देख ये रहा हूँ कि सलाव वाले ज्यादा सुनते हैं कि आप ज्यादा सुनते हैं। इसलिए कि पिछले दिनों हमारे एक स्कीना ट्रस्ट से आए हमारे बड़े पुराने जो, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के मुझे छोटे बच्चे के उस कसीदे से और लुत्फ आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी साफ ज़बान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीटरबरो में एक अच्छा खासा सिलसिला है ये नन्हे नन्हे ज़ाकिरीन का। मैं वहाँ भी कह रहा था कि अभी हमें गदीरी चिराग अब्बास मोहतरम ने अजीज़म ने पढ़ा, गदीरी पैगाम और गदीरी चिराग हमें रोशन करना है। तो अभी इस छोटी सी जगह में हम रोशन कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अली वाले अगर अली का नारा लगा के इस चिराग को लेके, हाँ ओलंपिक का वो चिराग देखा ना आपने, वो उठा के जनाब फिर रहे इस शहर में और उस शहर में नहीं, विलायत के चिराग को मोहब्बत के हाथों से थाम के और तहारत आले मोहम्मद की उस मोहब्बत के वुजू को लेके आप इस दुनिया में बतलाओ हैदरी ऐसे होते हैं। और अगर दाइश और तालिबान और कायदा मुख्तलिफ रंग और रूप अपना के भी आए, हैदर
غدیر، میں کتاب میں دیکھ رہا تھا کم از کم 14 پیجز A4 کے خطبہ غدیر ہے. ہمیں کیا پتا کیا ہے خطبہ غدیر؟ اس خطبہ غدیر میں سے ایک فقط روایت ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں، اس میں ایک جملہ ہے جناب پیغمبر اکرم کا، معاشر الناس، 52 ٹائم جناب پیغمبر اکرم نے یہ لفظ استعمال کیا، معاشر الناس، اے لوگو. اور ایک جگہ پہ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں معاشر الناس فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. غدیریوں ایک فریضہ پیغمبر بتلا گئے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، ہر موجود پر واجب ہے کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے، ہر اس کے لیے جو یہاں سے غیر حاضر ہے. وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر والد پر فرض ہے کہ وہ قیامت تک ہر والد اپنی اولاد کو علی کی محبت کا درس دیتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے بالکل پھیل گئی. اور عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا تذکرہ ہو جائے 40 سال جس نے زندگی کے خرچ کیے، اور 40 سال خرچ کے ایک حدیث کی 11 جلدوں میں شرح کی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. میں کبھی کبھی تصور کی نگاہ میں اس یہ پہ بڑا سرور لیتا ہوں. فہذا علی مولا. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، فوراً ولایت کیا ملی ہے جناب امین علیہ السلام کو؟ غدیر میں ولایت ملی ہے. اب ولایت کی آیت بھی اسی سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور یہ کہاں نازل ہوئی آیت ولایت؟ آیت ولایت مسجد نبوی میں نازل ہوئی. امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر ابھی تشریف نہیں لائے، اور اس اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں سب کی موجودگی میں جب فقیر مانگتا رہا، کسی سے کچھ نہ ملا، اب رب سے باتیں شروع کی. پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے میں فقیر خالی جا رہا ہوں. پروردگار گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بھی جس کو علی کے ذریعے سے ملے اس کو ہم مولا علی کہتے. اللہ گھر کس کا ہے؟ فقیر نے کیا کہا؟ فقیر کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. فقیر بھی بڑا کوئی سمجھدار تھا. علی نے ہاتھ بڑھایا، کہا اللہ کے گھر سے خالی نہ جا، ابھی تو ید اللہ موجود ہے. ابھی ید اللہ موجود ہے. ہاتھ بڑھایا. مجھے تو یہ لگتا ہے وہ آیا ہی اس ہاتھ کی عظمت بتلانے تھا، اس لیے کہ نہ پھر کسی کو نظر آیا نہ کسی سے سوال. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب میں کیا کروں؟ اب جب ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 ولایتیں ہو گئیں. جب تیسری ولایت پہ آتے ہیں، ایک جملہ لا الہ الا اللہ، ایک جملہ محمد الرسول اللہ. اب جب تیسری ولایت کی باری آتی ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اللہ کی ولایت کے لیے ایک جملہ، رسول کی ولایت کے لیے ایک جملہ. یہ تیسری ولایت کے لیے 3 جملے کیوں؟ گھبراہ تو نہیں کیا؟ صلوات پڑھیے موضوع بکھر رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں اس کو بکھرنے نہیں دوں، لیکن چلے آل محمد کی
मवद्दत के फूलों में से जो फूल भी मिले ये गुलदस्ता बन जाता है। जिस हद तक पेश किया जा सकता, जो रंग इसमें जमा हो गए, बाकी जो रह गए वो मेरी कमजोरी। तो 3 जुमले यहाँ हुए, तीसरी विलायत में 3 जुमले। मैं कहता हूँ हम क्या करें? रब ने जब खुद आयत विलायत नाजिल की, फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, आपका वली अल्लाह, वरसूलुहु, एक ही लफ्ज़ कह दी फकत, वरसूलु, और आपका वली उसका रसूल, वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। आपका तीसरा वली वो है जो ईमान लाता है, नमाज पढ़ता है, रुकू अदा करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। अब हम तो सुन्नत इलाही अदा करते हैं, वो अगर तीसरी विलायत का इजहार करता है तो 4-4 जुमलों से हमें 3 जुमलों में तो अली अली करने दो। आपका ज़हन में रखिए, ये मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, ये कब है? गदीर में। ये आयत विलायत है मदीना में। मैंने सवाल किया, परवरदिगार ये विलायत वहां अपने घर में जो उसको दे दी थी और हालत रुकू में दी थी, हालत रुकू में विलायत मिलना बेहतर था या ऊंटों के पालानों के मिंबर पे? अब जवाब आप सोचिए। ये मस्जिद नबवी है, नमाजियों के दरमियान में है, अली हालत रुकू में है और फिर वहां विलायत मिल रही है। परवरदिगार वहां जो विलायत दी और मुत्तफिका तौर पर ये आयत विलायत आयत गदीर से पहले परवरदिगार वहां जो विलायत दी थी, तो फिर यहाँ इजहार का क्या जरूरत थी? इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई ये न कहे मैं सजदे में था और देख नहीं सका किसने अंगूठी दी, मैं रुकू में था और देख नहीं सका किसके लिए आयत नाज़िल हुई, मैं सुतून के दूसरी तरफ था, मुझे नजर नहीं आया कि ये अली कौन है। मैं सारे सुतूनों को, सजदों को भी एक तरफ रख के, रुकू को भी एक तरफ रख के, मस्जिद के सुतूनों को भी एक तरफ रख के भरे और खुले मैदान में कहलवा रहा हूं, मेरा महबूब कह दे मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसने मुझे मुस्तफा का वली माना उसका यही अली मुर्तजा ये कर रहा था। तो मुबारक में खड़ा हूं मैं। मुबारक किसको दूं? इसलिए कि मुबारक उसको दी जाती है जो जश्न मुनाकिद करता है। आज की मुबारक किसके लिए होगी? आईकैप के अज़ीज़ान की, जिन्होंने चंद दिनों से लगे हुए हैं मुसलसल मेहनत में। अब गदीर की मुबारक किसको दूं? जिसने कहा जश्न मनाओ। गदीर की मुबारक किसको कहूं? यानी बानी कौन है? बानी कौन है गदीर का? वही है जिसने रसूल की 23 साल रिसालत की जिंदगी, 40 साल सदाकत और अमानत की जिंदगी, 23 साल रिसालत की जिंदगी, 13 साल मक्का के, 10 साल मदीना के। आखिरी आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक्त के दामन में अगर गुंजाइश होती तो मैं इन 2 आयतों में और तीसरी साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि
इन 9 जुमलात बनते हैं गदीर के हवाले से। उधर पैगाम मिलता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, मेरा महबूब जो हम पहुंचा चुके हैं फर्ज के तौर पर आप भी पहुंचा दो। फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, इस जुमले पे गौर कीजिए, अगर ये न पहुंचाया तो आपने कुछ न पहुंचाया। अब ये न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। ये जुमला ये कहता है कि जनाबे पैगंबर अकरम की 23 साला जिंदगी रिसालत और 40 साला जिंदगी अमानत और सदाकत, वो एक तरफ है, एक ऐलान एक तरफ है। मैं नहीं कहता कि ये ऐलान कितना मुहिम है, हमें आप तलाश करके बताओ वो कौन सा एक जुमला है या वो कौन सा एक ऐलान है जो कुल्ले रिसालत का हमवज़न है। अगर आपने ये जुमला न पहुंचाया, आपने ये पैगाम न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। अब हम इस जुमले की तलाश में हैं। यहूदी खलीफा दोम के पास आता है, कहता है ये जो आयत है दो अल यौम अकमलतु लकुम, अगर हमारे यहाँ ये आयत नाजिल होती, दिन हमें पता नहीं है कि वो कौन सा दिन है, लेकिन जिस दिन के लिए ये आयत नाजिल हुई है, अगर हमारे ऊपर ये नाजिल होती तो हम उस दिन ईद मनाते। हमारे मजहब में नाजिल होती। अब पता ही नहीं था कि कब नाजिल हुई, या पता तो था लेकिन फितरत इजाजत नहीं देती। जुमला में कह गया सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा फिर सलात पढ़िए या अय्युहर रसूल बल्लिग। किसने कहा? अल्लाह। क्या कहा? पहुंचा। कहां? कहा यहीं। अब जगह का तय्युन किसने किया? अल्लाह ने। हाँ, जश्न की जगह अफगानी सेंटर हो, बर्टन स्ट्रीट हो, जहां भी हो, आई कैप वाले तय करेंगे ना, बानी तय करता है। जाकिर कौन तय करता है? बानी तय करता है। ऐलान कौन कराता है? बानी का काम होता है। भाई सामीन को दावत कौन देता है? बानी देता है। नजर न्याज के एहतमाम ये सारा कुछ बानी करता है। मुझे बतलाओ, अब बानी ने मुहिम काम अदा किया, जाकिर घंटा पढ़ता रहता है, सामीन नारे लगाते रहते हैं, एक दरमियान में स्टेज सेक्रेटरी इश्तिहार लगाता रहता है, दावत देता रहता है, लेकिन मेन काम चूंकि बानी का है, कामयाबी होगी तो बानी को मुबारक होगी। अब मैं कहता हूँ कि बानी जलशन गदीर का कौन है? वो है जो पैगंबर को कह रहा है बल्लिग मा उनज़िला इस जश्न गदीर का 18 ज़िलहज्जा को बानी का नाम है अल्लाह, और यहाँ जो इश्तिहार लगा रहा है वहां से पैगाम ला के मुस्तफा को पहुंचा रहा है, उसका नाम है सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राइल। यानी स्टेज सेक्रेटरी कौन है? जनाब जिब्राइल। इसको दावत कलाम दी है। खतीब कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? सब के सब राज़ी अल्लाह। कहीं शिया कौम भी मेरा अजीब है। तो ये जो आप दावत दे रहे हैं, ये किसकी सुन्नत है? नहीं, सबसे पहली मुबारक जो दी थी बखन बखन शिया कौम भी अजीब सखी है। नाम मुआविया हो, बेटा यजीद का हो, और अली वालों के तरफदारी में बात करे, ना उसके बाप को याद रखते हैं, ना उसके दादा को याद रखते हैं, कभी कभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। इसलिए कि जो अली की और औलाद अली की तारीफ करे, नाम उसका माविया हो, बाप उसका यजीद हो, दादा उसका माविया हो, फिर भी हम उसकी तारीफ करके बता
बुलाते हैं। जिस जबान से अली निकलता है हम उसकी तारीफ करते हैं। अब यहाँ बखन बखन किसने कही? बखन दो जगह पे जी बखन बखन है। एक दफा फरिश्तों ने कही, हाँ या अली आपकी अजमत पे कुर्बान, आपकी मुबारक देने वाले या मुसलमानों के खलीफा अल्लाह के मासूम फरिश्ते। तारीख की मुसल्लमा बात है अजीजान गदीर के हवाले से। सबसे पहले जो गदीर में बखन बखन लका यब्न अबी तालिब इन्नका मौलाया मौलाया व मौला कुल्ल मोमिनिन, मुबारक हो अबू तालिब के बेटे, आप मेरे भी और हर मोमिन के मौला हैं। ये गदीर में सबसे पहली मुबारक जनाबे खलीफा दोम ने दी है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ खलीफा दोम यहाँ मुबारक दे रहा है, नाम अली इस्तेमाल नहीं है। बखन बखन लका यब्न अबी तालिब, मुबारक हो अबू तालिब के बेटे। जब वहाँ शब हिजरत मलाइका एक पैंती और एक सिरहाने खड़े होके वहाँ मुबारक देते हैं, वहाँ भी कहते हैं बखन बखन लका यब्न अबी तालिब। मैं कहता हूँ अली आप कितने अजीम, लेकिन वहाँ भी मुबारक का जरिया आपका बाबा अबू तालिब, और गदीर में भी मुबारक का जरिया आपका बाबा अबू तालिब। यानी ये खुद क्या सबब बताता है कि अगर नेक औलाद हो, हाँ नेक औलाद हो तो अली भी बाप की इज्जत का सबब बन जाते हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले अब मुबारक उस परवरदिगार की मुबारक के लिए हम क्या मुबारक देंगे? लफ्ज कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन क्या कहूँ मेरे पास और कोई लफ्ज ही नहीं है। हम मुबारक की जगह पे दुआ कर देते हैं, वही दुआ जो मैंने कहा है, परवरदिगार तेरी ज़ात का एहसान तेरी ज़ात ने हमें अली दिया है, तेरी ज़ात ने हमें अली दिया है। और एक शायर ने बड़ा खूब कहा, वो कहता है कि कलम सर सजदे में रख के, कलम के झुकने को उसने सजदे के साथ तशबीह दी, और कहता है कलम सर सजदे में रख के शुक्राने के तौर पर अली अली लिखती रहती है। शुक्राने के तौर पर अपने आप को इस निगाह से जब हम अली अली लिखते हैं तो गोया हालत सजदे में अली अली लिख रही है कब कलम, और वो भी शुक्राने के तौर पर। लिहाजा जहां अली अली हो वो जगह भी बाबरकत, वो अज़हान भी बाबरकत। और जिस शख्स का किसी अली से, हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि जो घरों में ऊंट रखते हैं वो दरवाजा ऊंचा रखते हैं, पंजाबी का बड़ा मशहूर एक मुहावरा है। अब जो बड़ों से जिनका ताल्लुक होता है उनके घर की चीजें भी बड़ी हो जाती हैं। अब जिसका अली के साथ ताल्लुक है, एक अदबी एतबार से बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। किसी ने कहा ये हाजा क्यों लगाया? मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ हाजा, क्योंकि जनाबे मैंने बड़े गौर से देखा कि हाजा है या नहीं। अक्सर हदीसों में लफ्ज़ हाजा है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। मैं अक्सर ये बयान करता रहता था, इसलिए पैगंबर कह रहे थे कि अगर कोई आंखों का भी नाबीना है, पैगंबर जोर से सुना रहे थे मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। मैं जोर से सुना रहा हूँ इसलिए कि किसी को नजर ना आए तो वो गदीर का मुनकिर न बन सके, बल्कि कानों से सुन ले कि रसूल कह रहे जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। या रसूल अल्लाह ये कह जो रहे हो तो ये हाजा क्यों कह रहे हो? का देखता नहीं हाथ पकड़ के दिखा रहा हूँ कि कल कोई ये न कहे मैं कानों का बहरा था, मैं बहरों को दिखा रहा हूँ, अंधों को सुना रहा हूँ। मैं बहरों को दिखा रहा हूँ, अंधों को सुना रहा हूँ। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले अदबी एतबार से एक शख्स ने बड़ा खूब कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया ने अली के फजाइल छुपाने के लिए अजीब अजीब ढंग सोचे, और अली का माना क्या है? अजीम, बुलंद, बुलंदतर। वो कहते हैं कि लोगों ने तर्जमा ये करना शुरू कर देना था मन कुन तो मौला हो, कि पैगंबर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ
अली मौला, उसका मौला कितना बड़ा है, तवज्जो फरमाइए आपने। अली का अगर लोगी माना आप लेंगे तो माना ये बनेगा मन कुन बुलंदर, मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ, मैं मुस्तफा कितना बुलंद मौला हूँ। अब अली का माना वो कहता है कि इसलिए पैगंबर ने फरमाया फहाज़ा अलीयुन मौला। अब आप लुग़वी माना नहीं कर सकते, आप अली की तस्वीर सामने देख रहे हैं, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये तस्वीर है अली मौला। यानी कोई बहाना किसी को न मिले। जनाब पैगंबर अकरम ने सारा एहतमाम किया, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। 40 साल खर्च करके अल्लामा अमीनी ने 11 जिल्दों में अल गदीर लिख के बतलाया, अली वाले जिंदगी 40 साल कोई मामूली जिंदगी नहीं है। अली वाले वो हैं जो 40 साल खर्च करके अपनी विलायत का यूं इजहार करते हैं। अली वली का जबान से नारा लगाना काफी नहीं है, जिस तरीके पे दुनिया के लिए और कुछ काफी नहीं है जब तक ये घराना न हो, इसी तरीके पे अली वाले के लिए फकत नारा लगा लेना काफी नहीं है। मैं आयतुल्लाह मज़ाहिरी का जुमला अक्सर कहा करता हूँ और दोहरा रहा हूँ, हकीकत में मवाली का काम ये नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए, मवाली का काम ये है कि जो अली के घराने से दूर तारीकियों में डूबे हुए हैं उन गुमराहों के हाथ थाम के उनको जन्नत में ले जाए। और ये विलायत के जरिए से हो सकता है। याद हमारा कोई फरीजा बनता है कि नहीं? आप कहेंगे यही तो फरीजा है जिसके लिए आपको बुला लिया। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद नहीं पढ़ सका अभी मैं, मुबाहला तो पढ़ना है माशाअल्लाह। 1 घंटा गदीर और 1 घंटा इसलिए कि गदीर में एक लाया है, उसके लिए 40 साल खर्च कीजिए। अब मुबाला में तो 5 आ गए थे, इसलिए कम अज कम जो 1 घंटा अगर गदीर के लिए हो तो 5 घंटे मुबाला के लिए हो। मैं बैठा सोच रहा था मुबाला एक जुमले के लिए अगर पढ़ूं तो मुबाला में झगड़ा क्या था? सलावत पढ़िए मोहम्मद मुबाला में किस लिए मुबाला? मुबाला यानी बरात ज़िमा, दूसरे से हम क्या हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, जिसको हम कहते हैं तलबुल लान। अब वो क्या करें, मुबाला में भी लानत है, गदीर में भी लानत है। सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, वो एक अलग मौजू है, इस तरफ चला गया बात बहुत फैल जाएगी। दोनों में ये कभी फिर इंशाअल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मुबाला में झगड़ा क्या था? दावत तो खुद पैगंबर अकरम ने दी थी उनको कि दीन इस्लाम को जानने के लिए हम पैगाम भेज रहे हैं, आओ। झगड़ा जिस बात के आखिर में ठहरा था वो ये था कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नबी। अब अल्लाह के बेटे अगर करार दें जनाब ईसा को तो शिर्क बनता है, इसलिए कि वो करीम कहता है लम यलिद वलम यूलद। ईसाई क्या कहते थे कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अब झगड़ा किसका था? झगड़ा तौहीद का था या नहीं? जरा तवज्जो फरमाइएगा। झगड़ा किस पे था? जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नहीं? वो सूरह आल इमरान है आयत मुबाला, जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नहीं? अगर हम बेटे नहीं है तो फिर कैसे इनकी पैदाइश है? तो वो सारा ईसाइयों के साथ झगड़ा असल में मैं यूँ कह सकता हूँ झगड़ा तौहीद का था। आप बात जरा आगे कहें तो ये भी हो सकता था झगड़ा ये था कि जनाब ईसा अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के बेटे हैं, यानी जनाब ईसा की नबूवत का झगड़ा था। अगर हम कहें तो झगड़ा ये भी कह सकते हैं कि जनाब ईसा अगर बगैर बाप के पैदा हुए तो फिर जैसे लोगों ने ये पहलू निकाला कि फलां शख्स के माज़अल्लाह बेटे थे, जैसे यहूदियों में से बाज़ ने कहा, तो ये झगड़ा दरमियान में इस्मत जनाब मरियम का भी बनता है, झगड़ा तौहीद का भी बनता है, झगड़ा
ईसा की नबूवत का भी बनता है, झगड़ा मरियम की इस्मत का भी बनता है। जो मेहनत और नुक्ते को समझने वाले हैं, मैंने बात बहुत बड़ी कर दी है। झगड़ा अल्लाह की तौहीद का भी बनता है, झगड़ा ईसा की नबूवत का भी बनता है, झगड़ा मरियम की इस्मत का भी बनता है, और साथ झगड़ा पैगंबर की सदाकत का भी बनता है। इसलिए कि पैगंबर उनसे मनवा रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। मुझे बतलाओ, इन 5 तन पाक में से सबसे बड़ा तो है पैगंबर, और मैं अब यही कहता हूँ, झगड़ा तौहीद का था, झगड़ा नबूवत जनाब ईसा का था, झगड़ा इस्मत जनाब मरियम का था, झगड़ा सदाकत जनाब पैगंबर का था। अब पैगंबर काफी नहीं थे। नई बात जो है वो दोहरा रहा हूँ। झगड़ा इन 4 चीजों का था। न अली की विलायत का झगड़ा था, न ज़हरा मरियम की तहारत का झगड़ा था, न जनाब हसनैन शरीफैन के सैयदा शबाब अहल जन्नह होने का झगड़ा था। झगड़ा या तौहीद का था, या झगड़ा नबूवत ईसा का था, या झगड़ा जनाब मरियम की इस्मत का था, या झगड़ा जनाब पैगंबर की रिसालत और सदाकत और अमानत का था। अब जब अल्लाह को तौहीद बचाने के लिए, इस्मत को नबूवत के सबूत के, जनाब ईसा को नबूवत के सबूत के लिए, मरियम को अपनी इस्मत बचाने के लिए, मुस्तफा को सदाकत दिखाने के लिए, यहाँ पर मुस्तफा के इस घराने के कोई पास नहीं था। तो मैं कहता हूँ, मुसलमान, तुझे अपना ईमान बचाने के लिए आले मोहम्मद के अलावा कैसे तुझे ये काफी होगा? किस लिए आए? अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए। कह सकता हूँ, बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ, अल्लाह की तौहीद के लिए 5 तन पाक की जरूरत, और सरे फहरिस्त है पाक पैगंबर। मैं जुमला ये कहना चाहता हूँ, मुझे बतलाइए, क्या पाक पैगंबर अली से अफजल है माज़अल्लाह? नहीं, अफजल पैगंबर। अब पैगंबर को अली की जरूरत है या नहीं? अब मुझे नहीं मालूम है या नहीं। रब कहता है, कुल तालो नदवा बनाना, तू कहे हम बुलाते हैं। हाँ परवरदिगार, ये तू कहे कुल तो आहिस्ता से कह देता, न दो, ताकि पैगंबर के ये लफ्ज बन जाते, न दो हम बुलाते हैं। कहा कुल तालो, न दो, हमारी तरफ से कहे हम बुलाते हैं। यानी रब अपने महबूब से कहलवा रहे, हम कह रहे हैं तू कहे, हम कह रहे हैं तू कहे। यानी ये हुक्म किसका था कि अली को बुलाओ, अनफुसना व अनफुसकुम, ये सबको बुलाओ। अब हम बुलाते हैं, तुम बुलाओ। अब ये बुलवा कौन रहा है? रब कहलवा रहा है। अब मैं कहता हूँ, परवरदिगार, तेरी तौहीद की जरूरत पड़े तो तू अली हो, ज़हरा हो, हसनैन को बुलाता है। तेरी वहदानियत के सबूत के लिए ये चल के आते हैं। परवरदिगार, तेरी ईसा रूहुल्लाह की नबूवत बचने के लिए जरूरत पड़े तो ये आते हैं। मरियम की इस्मत के लिए ज़हरा बाहर आ जाती है। रसूल की सदाकत के लिए ये 4 आते हैं। हम कहते हैं, जब ये 4 न हो तो ये 4 चीजें नहीं बचती। कल अगर कहीं और 4 को सामने लेके इनसे अपने आप को दूर न करना, अगर इनका इकरार न हो तो न दीन बचता है, नेमतें बचती है। सभा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मुबाला के लिए इतना ही काफी। पैगंबर अकरम से आयात, रब से आयात, मैंने कभी मुबाला के हवाले से नकल किया था। जनाबे इमाम हश्तुम से सवाल होता है, मौला आपकी निगाह में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? जनाबे कुरान के हवाले से, आपकी निगाह में जनाबे अमीर की कुरान के हवाले से सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आयत मुबाहला पढ़ के जनाब इमाम हश्तुम फरमाते हैं, अनफुसना व अनफुसकुम। जब मुस्तफ़ा का नस बन गए, अब जो अज़मत मुस्तफ़ा है वही अज़मत मुर्तज़ा है। इसलिए मुस्तफ़ा को कहना पड़ा, इल्ला ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, बाकी सब मैं अली जैसा, अली मुझ जैसा। यह 8वें इमाम का फरमान कुरान के हवाले से।
जनाब अमीर उल मोमिनीन से सवाल किया गया, या अली पैगंबर के फरमान के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी तारीफ कौन सी है? जनाब अमीर फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली, जिसका रसूल मौला उसका मैं मौला। एक दफ़ा जनाब अमीर से ये भी पूछा गया था, या अली कुरान के हवाले से आपकी सबसे बड़ी तारीफ कौन? फरमाया पैगंबर को हुक्म हुआ कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये पैगंबर को हुक्म हुआ, इनको कहो कि मुझे आपकी तरफ से मेरी नबूवत की गवाही की जरूरत नहीं है, मेरी गवाही नबूवत के लिए दो गवाह बस हैं, एक अल्लाह, एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। अली फरमाते हैं, मुझे फख्र ये है, मेरी फजीलत ये है कि मैं मुस्तफा की रिसालत का गवाह हूँ। अब मैं क्या फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पढ़ूंगा। एक हदीस एक अहले सुन्नत आलिम ने लिखी है, लिखते हैं कि मन कातब फजीलतुन मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जिसने अली के फज़ाइल में से एक फजीलत लिख दी, जब तक वो किताब बाकी है, जब तक वो तहरीर और वो रस्म बाकी है, मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर कहते हैं कि इसी हदीस में नक़ल करते हैं कि जिसने एक फजीलत जिक्र कर दी, बयान कर दी, फ़ज़ाइल लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प है, फ़ज़ीलतुन मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अली की फजीलतों में से एक फजीलत, तो वहाँ जनाब पैगंबर अकरम फरमाते हैं, अगर किसी ने बयान कर दी तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। अगर किसी ने एक फजीलत आंखों से पढ़ ली तो उसके आंखों के गुनाह माफ हो गए। अगर एक फजीलत उसने अपने कानों से सुन ली तो कानों के गुनाह माफ हो गए। अब एक एक फजीलत अगर लिखी जाए तो उसका ये मकाम होता है, और अगर किसी की पूरी जिंदगी फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में गुजर जाए उसका क्या मकाम होगा। लिहाजा हमारा फरीजा ये बनता है, बात बिल्कुल या रोक रहा हूं अधूरी सी, जनाब पैगंबर लाए इनको गुबारा में और दिखाया गदीर में कि मेरे बाद अगर दीन की जरूरत पड़े तो ये हैं जिनसे आपने दीन लेना है। मेरा बड़ा मशहूर, मैं कभी अर्ज करता रहता हूँ, जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का वो फरमान, इमाम से याह्या इब्न अक्सम ने पूछा था कि ये आयत जो जनाब आसिफ इब्न बरखिया और जनाब सुलेमान के मुताबिक है, आया आसिफ इब्न बरखिया गैर नबी होकर नबी से अफजल थे, या जनाब आसिफ के क्यों मोहताज बन गए थे जनाब सुलेमान? याद है, मैं कई दफा नकल कर चुका हूँ। आप याद न रखें तो हमारे लिए आसानी होती है, इसलिए कि जब हम पढ़ेंगे आपके लिए नहीं होगी। अगर आप याद रख रखेंगे तो फिर हमें मुश्किल होगी कि कल पढ़ी थी फिर पढ़ेंगे तो कहेंगे वही तकलीफ है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद से अभी जो है वो पुरानी बात दोहराने की बात नहीं है, इसलिए मैं इशारे से गुजर रहा हूँ। 12 आयात पढ़ी हैं जनाब इमाम ने यहाँ इस्सतुफ़ुल में, यह है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तज़किरे में, कि जनाब इमाम से याह्या इब्न अक्सम ने ये इस आयत के बारे में सवाल किया था कि सुलेमान है अल्लाह के नबी, आसिफ इब्न बरखिया हैं गैर नबी, अब नबी से कोई गैर नबी इल्म में अफजल नहीं हो सकता, तो जनाब सुलेमान ने तख्त बिल्कीस मंगवाने के लिए क्यों मदद तलब की थी? आया नबी गैर नबी का मोहताज था? यहाँ जनाब इमाम ने जवाब दिया, याह्या ये एहतियाज की बात नहीं थी, बल्कि जनाब सुलेमान बतलाना चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी में आसिफ इब्न बरखिया अपने वसी से, अपने बाद के वली से मदद लेके ये बतला रहा हूं, मेरी जिंदगी के बाद अगर दीन की जरूरत हो तो इससे मदद लेना, इससे दीन पूछना। हम यही कहते हैं मुबाहला में पैगंबर को न अली की जरूरत थी, न बतूल की, न हसन मुज्तबा की, न शहीद करबला की, बल्कि इन सब को बुला के बतला रहे थे कि मेरे बाद अगर दीन की जरूरत हो तो ये पंजे तन बनते। अब दीन लेना है तो बस हमारा एक ही तो इख्तिलाफ है, दीन किससे लें? जिससे मर्जी हो या फिर ले ही नहीं। अजीजान
कुछ अली से नहीं लेते और हम तो लेते हैं ना जनाब अमीर से। मैं आपने सवाल करता हूँ, मैंने इस साल पूरी ज़िंदगी में कितने दफ़ा ये देखा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, या अपनी ज़िंदगी में हिसाब कर लें, मैं ये काम कर रहा हूँ, अली की इसमें इजाज़त है या नहीं? या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए देख तो लूँ अली ने मेरी ज़िंदगी के लिए कोई उसूल बयान किया है या नहीं? इंसान कामिल इंसान कामिल, उससे कमाल की राहें हमें लेनी है या नहीं? क्या लिया हमने? मैं जवानों से अर्ज करता हूँ, हमारे एक मरहूम खतीब फरमाया करते थे, ये रुबाई है, ये कसीदा है, ये सारी हमारी बहुत अच्छी हमारी महफिलों की जीनत होती है, लेकिन अगर किसी के साथ हमने विलायत अली के मुताल्लिक और अज़मत इल्म जनाब अमीरुल मोमिनीन के मुताल्लिक गुफ्तगू करनी है, मैं कसीदा पढ़ दूँगा? पढ़ने चाहिए कसीदे अपने दिल के सुकून के लिए, पढ़ने चाहिए। मैं पिछले दिन एक सुन्नी आलिम है इस वक्त भी हिंदुस्तान के, हाशमी मियाँ, हाँ, वो एक नज़म पढ़ रहे थे, कहते हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। और फिर आगे बढ़ के एक जुमला कहता है, वो कहता है खैबर का किला चीख के देता है गवाही। मुझे बड़ा सुरूर आया इस लफ्ज़ से चीख पे, खैबर का दरवाजा भी चीखता है, हाँ, अगर इंसान तसव्वुर की निगाह में देखे तो दरवाजा चीखता है, खैबर का किला चीख के देता है गवाही, ला रैब की कुव्वत यज़दान अली है, ला रैब की कुव्वत यज़दान अली है। ये चीजें हमारी महफिल की रौनक होती हैं। अजीजान, हमारा फरीजा ये बनता है हम कलाम अली को लेके दुनिया वालों को बतलाएं। मेरे पिछले 2 सेशन जो थे हिदायत टीवी पे, मैंने वहां ये जुमला अर्ज किया था, इस वक्त एक बात चल रही है हुकूकुन नास और अकलियतों के हुकूक, कहां से आप पेश करेंगे? आइए वो जो गवर्नर का तरीका बतलाया जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब मालिक अशतर को, जनाब अमीर फरमाते मालिक जहां जा रहे हो वो यहाँ तेरे हम मजहब हैं, इम्मा अखुन लका फिल दीन और मिस्लु का फिल खल्क, या वो तेरे दीनी भाई हैं या इंसानियत में तुझे जैसे हैं। अब इसको कहते हैं हम हुकूक इंसानियत। खत नंबर 27 जाके देखिए, खत 25 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं है कि मैं उसमें जाऊं, यहाँ खत नंबर 25 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुद को कहा है, अरसलनी के मेरी तरफ से ज़कात जमा करने वालों जाओ और उनको कहना अरसलनी वलियुल्लाह व खलीफतो, कि मुझे आपकी तरफ अल्लाह के वली ने और अल्लाह के खलीफा ने भेजा है। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने आप को वलियुल्लाह कह रहे हैं, खत नंबर 25, और वलियुल्लाह व खलीफतो, अल्लाह का वली और अल्लाह का खलीफा। ये तो हम कहते हैं ना खलीफतो बिला फस्ल, मुस्तफा का खलीफा नहीं, अली मुर्तजा फरमाते हैं खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा। खत नंबर 25 में वहां हैवानों के हुकूक बतला रहे हैं जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं अगर कोई आपको ऊंट और ऊंट के बच्चे उसके साथ हों तो वापसी पे मेरी तरफ ये चीजें लाते हुए, इन हैवानों को लाते हुए ऊंटनी और उसके बच्चे में जुदाई न करना, दूध ज्यादा दोह न देना इसलिए कि वो बच्चा भूखा न रहे, कहीं रास्ते में आके सब्जा नजर आए तो उन हैवानों को जल्दी से उस इलाके से न गुजार लेना। और कहते हैं ये मेरी तरफ से ज़कात इकट्ठी करने वालों, अगर सवारियों के लिए आपको हैवान मिल जाएं तो सारा सफर एक ही हैवान पर सवारी करके ना आना, बल्कि रास्ते में हैवान बदलते रहना ताकि इंसाफ मद्देनजर रहे। ये है वो पैगामात जो हमने अली के दुनिया वालों को बतलाने हैं। भला हो हमारे जमहूरियत इस्लामी ईरान के बरादरान का जिन्होंने नहजुल बलागा को इस अंदाज में पहुंचाया है, और आज UNO की बिल्डिंग पे भी ये जुमलात लिखे गए हैं जो मालिक अशतर को जनाब अमीर ने फरमाए थे। और अब मुझे ताज्जुब होता है इस वक्त जो भी उठता है या कहता है हमारी हुकूमत बेहतर करने के लिए इनकिलाब खुमैनी चाहिए, या कहते हैं अदालत अली इब्न अबी तालिब चाहिए। अब ये पैगाम हमने पहुंचाना है, लेकिन ये पैगाम कब पहुंचाएंगे? सबसे पहले अपने इस जान को, अपने इस नफ्स को, मैं जो शोर करता रहूं दूसरों तक तो पहुंचाऊं, लेकिन मुंह ऊंचा करके मैं अगर पहुंचाऊंगा तो यहां नहीं सुनाई देगा। जी पहले इसको सुनाओ।
मौलाना रूम का एक जुमला वो कहता है कि शायर हैं, बड़ी तफसील से 8-9 जिल्दों में अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी ने इनकी मसनवी की शरह लिखी है। नाजुल बलागा की शरह है अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी की, कोई 29 जिल्दों में 154 खुतबात की मुकम्मल नहीं है, 29 जिल्दों में मुकम्मल नहीं है। वहाँ मैं देख रहा था एक पूरी उन्होंने नज़म लिखी है कि जनाब अमीर सलाम की चेहरे अक़दस पर जब अमर इब्न अब्दुल ने गुस्ताखी की तो जनाब अमीर ने उसके सीने को छोड़ दिया। अब अजीब जुमले कहे इसने मसनवी में मौलाना रूम ने, वो कहता है ये तो कार खुदाई है। हाँ, कार खुदाई है इसलिए कि खुदा यूं अपने दुश्मन को माफ कर देता है, तू फिरौन बन, तू नमरूद बन। ये अली का इस अंदाज से उतर आना, ये तो कार खुदाई है। हाँ, और जोश रूम ने यही कहा था, कहते अली के 2 जिंदा मोजज़े हैं, 2 जिंदा मोजज़े हैं। सारे चुप हो गए, सलावत पढ़ के मोहम्मद वो तो मुकदमा था। ये हम जमींदार लोग हैं, मैं अक्सर कहा करता था शुरू में मजलिसों में, वो तो जमीन हमवार करनी थी, अभी जमीन हमवार भी, अब थोड़े थोड़े बीज बोले ताकि फिर बागीचा लगे और हम कहेंगे बागीचे अलग ही है। हाँ, उसमें कोई फलदार पौधा है, कोई फूलदार पौधा है, उसको पत्थर भी मारो तो कोई फल देता है, कोई खुशबू देता है। ये हमारा किरदार होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं जिस शजर की बुनियाद मोहब्बत अली पे हो वो बाग ऐसा होता है, कोई मालिक की सूरत में होता है तो कोई होजर की सूरत में होता है। अपने किरदार को आइए इस अंदाज से बनाएं। सबसे पहले अली से मदद तलब करके कुव्वत हासिल करें और अपनी इस नए पे अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी का ये जुमला कह दो और ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी कहते हैं कि इस वक्त सारे लोगों का एक ही जिंदगी का हदफ है, और वो हदफ क्या है? फारसी में वो लिखते हैं मी खाहम, मैं चाहता हूँ, मेरा भी आपका भी सबका हदफ एक है, मी खाहम, मैं चाहता हूँ। नहीं अजीज़ों, इस मी खाहम से अपनी जिंदगी को बदल के आइए कोशिश करें, मेरा रब क्या चाहता है, मेरा मौला अली क्या चाहता है। जी चाह रहा था चंद जुमलात आप हज़रात की खिदमत में, बिलखुसूस जवानों की खिदमत में खत नंबर 31 से अर्ज करूँगा। अजीज़ान, कम अज़ कम बदीर के मुबारक दिन में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बैठ के इस खत को तो सोच लीजिए। अली अपने 36 साला जवान मासूम बेटे को वसीयत कर रहे हैं, अली क्या चाहते हैं हमसे। हाँ, खत नंबर 31 पढ़िएगा और कोशिश कीजिए इस गुलदस्ता मवद्दत को उलूम में आले मोहम्मद का गुलदस्ता बना के दुनिया वालों तक पहुंचाओ, उनको बतलाओ अली ऐसे हैं, अली वाले ऐसे होते हैं। परवरदिगार गदीर के मौके पे, मुबारक दिनों पे और मुबाहला के मौके पे हम फ़कत और फ़कत तेरी ज़ात से एक चीज़ मांगते हैं, और वो चीज़ वही मांगते हैं जो तेरे महबूब ने मांगी थी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगार, हम गुनाहगार दिलों वाले हैं, हमारे हाथ गुनाहगार, हमारी आंखें गुनाहगार, हमारी ज़बानें गुनाहगार। परवरदिगार, हमें मोहब्बत आले मोहम्मद का खजाना अता फरमा, खजाने को दुश्मनों से महफूज रखने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना। बहुत सारे अफराद ने बहुत सारी दुआएं ज़िम्मा लगाई हैं, बस इतना ही है। परवरदिगार, जब खुशी का दिन हो तो लोग ईद मांगते हैं, हम ईद के तौर पर यही मांगते हैं। हमारा इमाम अली है, जनाब उम्मे ऐमन को जब प्यास लगी थी ना, और प्यास से मरने लगी थी, आसमान की तरफ रुख किया, कहा मरना तो हर किसी को है, लेकिन यहाँ बियाबान में यूं गुर्बत की जिंदगी मर गई तो लोग कहेंगे ज़हरा की कनीज बेवारिस थी, लिहाजा बेवारसों की तरह नहीं मरना चाहती। और उसी आसमान से पानी का डोल उतरा और जनाब उम्मे ऐमन ने सुकून से पिया। परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, लेकिन लोग हमें शिया, हमें मवाली हैदर करार कहते हैं। परवरदिगार, जो गमों में मुब्तला है उनके गम दूर फरमा, जो परेशानियों में है उनकी परेशानियां हल फरमा, जो हाजतें लेके आए हैं परवरदिगार इस दरवाजे से उनको खाली न लौटा, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से माला माल फरमा, जिनको अता की है
परवरदिगार उनको नेक और साले बना, जो मरीज हैं उनको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा, जो हमारे बुजुर्गान इस दुनिया से चले गए हैं परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमा, उलमाए हक़ मुज्तहिदीन इज़ाम की मेहनतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा, दुश्मनाने अहल बैत को अपने इरादों में नाकाम फरमा, वली बरहक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के परचम का साया नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. काम सिर्फ दो की कसीदे और उसके बाद जो है इंशाल्लाह नयाज़ सर्व करेंगे. खास करता हूँ ब्रदर अब्बास की कसीदे तशरीफ लाएं और मोहम्मद वाले बैले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली. नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं, नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं. अली जिया पीर तेनू कित्थों लभसी, नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं. अली जिया कित्थों लभसी, अली जिया पीर तेनू कित्थों लभसी. साडियां विच भी कोई नहीं ते तुहाडियां विच भी नहीं. अली जिया पीर तेनू कित्थों लभसी. साडियां विच भी कोई नहीं ते तुहाडियां विच भी नहीं. अली जिया पीर तेनू कित्थों लभसी. सलवात चल शान मौला गाज़ी उस्ताद की शान में. अब्बास करबला की जरूरत है दोस्तों, अब्बास करबला की जरूरत है दोस्तों. अब्बास मुर्तज़ा की रियासत है दोस्तों. अब्बास अंबिया की करामत है दोस्तों. अब्बास जुल्फ़िकार इमामत है दोस्तों. अब्बास जैसा कोई नहीं इस जहान में. मौला हुसैन रहते हैं इसकी अमान में. मौला हुसैन रहते हैं इसकी अमान में. नारे अलमदार कोई बयान कैसे करे इसका मर्तबा, कोई बयान कैसे करे इसका मर्तबा. इसको सलाम करता है मरियम का लाडला. अब्बास खुद है तीसरा बेटा बतूल का. ये राज आज तक ना जमाना समझ सका. बेटा इसे बतूल ने यूं ही बनाया है. मौसिल के बदले दहर में अब्बास आया है. मौसिल के बदले दहर में अब्बास आया है. कैसे बयां हो इसका भला क्या मकाम है. कैसे बयां हो
اس کا بھلا کیا مقام ہے، اس کے لیے یہ بات زمانے میں عام ہے۔ عباس بس اکیلا وفا کا امام ہے، عباس بس اکیلا وفا کا امام ہے۔ دونوں جہاں میں مرکزی احساس ایک ہے، زہرا کے خاندان میں عباس ایک ہے، زہرا کے خاندان میں عباس ایک ہے، زہرا کے خاندان میں عباس ایک ہے۔ دین کا علم رسول نے حمزہ کو تا دیا، دین کا علم رسول نے حمزہ کو تا دیا۔ حمزہ کے بعد جعفر تیار کو ملا، جعفر سے ہاتھوں ہاتھوں علی کو عطا ہوا۔ غازی کے پاس آتے ہی غازی کا ہو گیا، کرب و بلا کے بعد کسی کو ملا نہیں، غازی کے ہاتھ چھوڑ کر پرچم گیا نہیں، غازی کے ہاتھ چھوڑ کر پرچم گیا نہیں۔ صلوات بولنے کرام ایک گاڑی ہے BL5110NU، BL5110NU، سلور کلر کی کار ہے، جن کی ہے ادھر موو کر لیں اور پیسنجر بلاک کیا ہے اس نے، کسی مومن نے جانا ہے تو جلدی ہے تو یہ گاڑی موو کر لیں پلیز، BL5110NU۔ اور آج کی محفل کے آخری سناحہ درخواست کرتا ہوں برادر عادل کریم سے کہ تشریف لائیں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے بولے نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ استاد سید جعفر زیدی شہید کے چند اشعار اپنی سماعت بے نظر درود علی کا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدا اخیر کی باتیں، ابتدا اخیر کی باتیں، ابتدا اخیر کی باتیں، ابتدا اخیر کی باتیں، ذل شیرہ غدیر کی باتیں، ذل شیرہ غدیر کی باتیں، ذل شیرہ غدیر کی باتیں، اور مصطفیٰ کو نہ کیوں اچھی لگے، مصطفیٰ کو کیوں نہ اچھی لگے، اپنے پیارے وزیر کی باتیں، پیارے وزیر کی باتیں، اور حب حیدر ولائے آل نبی، حب حیدر ولائے آل نبی، ہے خمیر اور شیر کی باتیں، خمیر اور شیر کی باتیں، اور ان سقیفہ مزاج لوگوں سے، ان سقیفہ مزاج لوگوں
یہ کیا امیر کی کیجیے کیا امیر کی باتیں اور کچھ رلاتی ہیں اور کچھ ہنساتی ہیں کچھ رلاتی ہیں اور کچھ ہنساتی ہیں آج پیران پیر کی باتیں آج پیران پیر کی باتیں اور سبط جعفر کی شاعری کیا ہے سبط جعفر کی شاعری کیا ہے ایک روشن ضمیر کی باتیں روشن ضمیر کی باتیں صلوات آواز پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے سر یہاں کر جھکانے سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے خاص توجہ یوں تو ہر مشکل میں خود آتے ہیں مولا بالیقین یوں تو ہر مشکل میں خود آتے ہیں مولا بالیقین وقت آخر ان کے آنے وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے نعرہ حیدری وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے اور عشق حیدر کا جنوں کہنے لگا بہلول سے عشق حیدر کا جنوں کہنے لگا بہلول سے ارے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے سر یہاں کر جھکانے سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے صلوات مؤمن کرام متوجہ بزیادہ السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولا وابن مولا، السلام عليك يا ذريب القرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، من شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسعنا الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعل من أنصارك وأعوانك وشيئتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.